So I'm already given my introduction. I'm advocate Vivek Goel, and I'm into property documentation. I'm LLB from Noida, Bali, Greater Noida, and LLM from Preston Park, US. So we all are interested in buying property for our houses, our offices. Have you ever thought whether what property you are buying, will you be the owner of that property or not? Or the property you are in, whether you are the owner of the property or not? If registered, we are owners. That's a biggest mistake. You never know. There are a lot of disputes happening in India where people from the back chain have disputed, and government has given a clear guidance that if the back chain is disputed, your chain is equally disputed. There is recent Supreme Court judgment as well that if the previous chain is not proper, it's improper, any dispute is there, your chain is null and void, and there is a proper litigation that can happen on your property. So this is one major thing that nobody is concerned of. Whenever you are buying a property, look for who is the actual owner of the property. There is a full chain of title from where the property is, inception of the property until the last point from whom you are buying it. There are bills. Many times we ignore that, okay, the person is not paid the bill, we can pay the bill. But if you see, water bills these days are somewhere around 12 lakhs. I recently encountered a property where the water bill was more than 1 crore. Because he is never paid and nobody is disconnected with the right that you can't stop electricity and water. But with all the late payment charges and all that, the bill is more than 1 crore. And property value is 3 crore rupees. So you should also see whether there is an encumbrance in the property or not, whether there is a loan. Many times people buy a property and later on they get to know that the bank has the original papers of the property. When we are buying property, we are so much eager to buy it and give the property and book it for us, we never consider whether we can see the original property. That's a right. Original property papers. We never consider that. That it's a right. And property is leasehold or freehold. In Delhi, a lot of properties are freehold. But have we exercised our right to see and check whether the property is leasehold or freehold? Whether the freehold deed that they are showing is genuine or it's fake? We never do that. And कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो आप देखेंगे मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में कंस्ट्रक्शन के वायलेशंस हो रखे हैं. दिल्ली में भी लास्ट ईयर आया था, बीच में 5 प्रॉपर्टी की सेलिटी बंद कर दी कि हमें एक फ्लोर पे 2 प्रॉपर्टी लेने थे, क्योंकि लोग ये तो देख रहे थे कि एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बने हुए हैं, बट कोई ये नहीं देखता कि 2 फ्लैट बने हुए हैं उसमें किचन कितनी अलाउड है, हर फ्लोर पे एक किचन अलाउड है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है देखने का. और चेन ऑफ पेपर्स तो है ही है. आधे ज्यादा लोगों को ये नहीं पता 21 सितंबर 2001 के बाद प्रॉपर्टी पेपर अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है. फिर भी ट्रांजैक्शन चल रही है, खासकर ये जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है इनमें अभी भी चल रही है. नेहरू प्लेस हो गया, बिगरी गांव प्लेस हो गया, और आप एनएसपी की बात करें, आप एनएसपी में आपका ऑफिस है, काफी बिल्डिंग्स के ग्राउंड रेंट पे नहीं है, उसमें वायलेशंस की वजह से उनकी लीज कैंसिल है डीडीएस. पूरे नेहरू प्लेस की कोई भी एक बिल्डिंग ऐसी नहीं जिसकी लीज आज की डेट में एक्टिव है, सबकी लीज कैंसिल है. बिगरी गांव प्लेस सेम है, आंसर ने सब जगह का यही कर रखा है. दे हैव कंस्ट्रक्टेड मोर देन व्हाट वाज अप्रूव्ड, सबकी लीज कैंसिल हो रही है. आपकी लीज रजिस्टर होनी चाहिए कम से कम. सर वो परपेचुअल लीज होती है 99 इयर्स की, जो डीडीए करता है. ओके. और डीडीए ने सबकी मिसयूज में कैंसिल कर रखी है. डीडीए हैव द पावर टू कैंसिल द लीज. डीडीए ने सबकी कैंसिल कर रखी है. नॉर्मली 5 to 10 इयर्स की लीज. वो आप प्राइवेट लीज की बात कर रहे हैं, मैं परपेचुअल लीज की बात कर रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट अलॉट करे.
सर 2 प्लॉट है बाद में आफ्टर मीट ठीक व्हाट इज द नीड ऑफ द एडवोकेट। अब यहाँ पे हमारी क्या नीड है, एक एडवोकेट आपकी सारा ड्यू डिलिजेंस कर सकता है, जैसे मैंने बताया लीज कैंसिल है, ड्यू डिलिजेंस करके हम ये बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी में कितने के मिसयूज है। एट वन पॉइंट यू कैन गेट दैट बिल सेटल्ड and everything can be checked before you pay even a penny to the buyer, to the seller, sorry. Title verification, आज की डेट में आप एक एक टाइटल किसी न किसी पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कि whether it was executed or not. दिल्ली गवर्नमेंट ने हर चीज ऑनलाइन कर दी है, तो आप ऑनलाइन हर चीज को चेक कर सकते हैं। आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर है नहीं है, ड्राफ्टिंग में जो पिछले वाले को राइट था वो आपके पास प्रॉपर आया नहीं आया, वो आपको एक एडवोकेट से चेक कराना जरूरी है। कब कब आपको मॉनिटर कर सकती है, जब आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आया है, या फिर आप लीज कर रहे हैं, लीज में भी आपको चेक करना जरूरी है कि आप रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं फंसेंगे, आपको क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं बिफोर आप लीज करें अपनी प्रॉपर्टी, या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको लीज में रखना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में अगर एक टेनेंट को लीज पे दे रहा है, वो तो लैंडलॉर्ड करवा देता है कि हाँ आपने अगर खाली नहीं करा तो मैं इतनी पेनल्टी लगाऊंगा, बट आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे अगर उसने पेपर में वापस करी तो क्या पेनल्टी होगी वो उसकी बात कोई नहीं करता। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। लैंड यूज, आप जिस पर्पस से प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं वो लैंड यूज आपका है या नहीं है, कि अगर आपने कमर्शियल पे लिया है तो आप कमर्शियल ऑफिस चला सकते हैं नहीं चला सकते, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है जहाँ पे दिल्ली की प्रॉपर्टी 1950 से पहले की भी है, 1960 की भी है, एंड देयर जनरेशन डिफरेंस, जिसने खरीदी थी जनरेशन चेंज हो चुकी है, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली इनहेरिट हुई है नहीं हुई, ये भी एक कंसर्न है। Where which an advocate protected interest, conducting proper due diligence, drafting and receiving contract, negotiating terms, आप कब खरीद रहे हैं तो टर्म्स कहाँ पे नेगोशिएट होने चाहिए, एडवोकेट कैन गाइड यू वेरी वेल ऑन दैट। हैंडलिंग लिटिगेशन, कोई भी लिटिगेशन आ जाए, एडवाइजिंग ऑन कंप्लायंसेस, कि आपको कोई भी कंप्लायंस करना है तो उसको कैसे फास्ट और आपके फेवरेबल मैनर क्या हो सकता है उस पे हम आपको बता सकते हैं। एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया टाइटल में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मेरे पास रिसेंटली कल एक डीड आई हो गई, कोऑनर से हम गिफ्ट करेंगे, मैंने आपको 15 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करनी है तो करो, मैं 2,500 रुपए का आपको ला दूंगा, फिर गिफ्ट कर दो। अभी मेरे पास एक रिसेंटली केस आया, हस्बैंड वाइफ और कोऑनर्स, कैटेगरी एक ही वसंतपुर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि टाइटल पेपर्स हो गए तो मैंने सजेस्ट करा एक डीड एग्जीक्यूट कर लो, बैंक के पास एक डीड होगी, बैंक उस पर लोन कर देगा। 15 लाख रुपए किसी ने गिफ्ट डीड की स्टैंप ड्यूटी रिकमेंड कर दी, गिफ्ट डीड कर लो, मैं कभी 2,500 रुपए में रिलीज डीड कराऊं। आपका बुक वन डॉक्यूमेंट बनता है और आपका टाइटल डॉक्यूमेंट बनता है, 15 लाख जो बचेंगे वो आप शेयर कर देंगे एक पीस। तो यही है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, मैंने बस छोटी सी चीज बता के उनके कम से कम लाख बचा लिए। तो ये चीजें हैं, आप अगर एडवोकेट को कंसल्ट करें तो ये चीजें बच सकती हैं और काफी कुछ हो सकता है। थैंक यू।